بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان توڑنے کے منصوبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آئیں، اس ہائبرڈ رجیم سے عوام کو نجات دلائیں۔ اگر آپ ڈیل کر کے باہر نہ آئے تو 28ویں ترمیم کر کے ملک توڑنے کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ عمران خان صاحب کو کچھ اہم ترین حلقوں کی جانب سے دستاویزی ثبوت دکھائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیل نہ کی، اگر آپ نے NRO نہ دیا تو خدا نخواستہ ملک ٹوٹ سکتا ہے۔ میں یہ خبر شاید ابھی اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کچھ تفصیلات آنا باقی تھیں، کچھ دستاویزات آنا باقی تھیں جن پر میں کام کر رہا تھا، لیکن آج پھر ایک ایسی تحریر میرے سامنے آئی جس پر پھر میں نے مزید کام کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی اور کو بھی شاید اس بات کا احساس ہے اور آئندہ چند دنوں تک یہ خبر شاید کھل کر آ جائے گی سامنے۔ میں پوری تفصیلات ان تمام تر دستاویزات کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا عمران خان صاحب کو بلیک میل کر کے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ ہم تاریخی حقائق کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف ملک کے اوپر اپنی حکومت، اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے ملک ہی توڑ دے؟ ماضی میں ہمیں اس قسم کی مثال ملتی ہے، اور اس حوالے سے حامد میر صاحب کے بھی کچھ خوفناک انکشافات آ چکے ہیں، کچھ تاریخی دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ایک اہم ترین شخصیت کی ایک تحریر، بلکہ پہلے وہیں سے آغاز کریں گے۔ اور پھر کبھی کبھار میں یہ بات سوچتا ہوں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، آپ بھی یہ بات سوچیں گے کہ کیا صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں، کیا صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے؟ اتنے بھی ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر کسی روایتی سیاسی مافیا کے یا طاقتور حلقوں کے؟ سنیے ذرا، کیونکہ معاملہ شروع کیا جا رہا ہے نئے صوبے فائدے مند یا نقصان دہ۔ 28ویں آئینی ترمیم کی بنیاد بنا کر کیا کرنے کا پلان ہے؟ آگے چل کر عمران خان صاحب اس منصوبے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور کیا عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے یہ درفنتنی چھوڑی جا رہی ہے، یا اصل میں حقیقت میں اس کے اندر کچھ حقائق بھی موجود ہیں؟ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ تیاری تو بہت عرصے سے کی جا رہی تھی، مگر اب کھچڑی تیار ہے، بوتل سے جن باہر آنے والا ہے۔ اہل حکم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر نئے صوبے نہیں بنتے تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ مقتدرہ میں یہ سوچ گزشتہ کئی برسوں کی بحث و تمہیز کے بعد پیدا ہوئی۔ نون ابھی ہاں اور نہ دونوں کے درمیان ہے۔ پیپلز پارٹی فی الحال اس تجویز کو نقصان دہ سمجھتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا، اس کے سامنے بلیک میلنگ کے ذریعے یہ چیزیں رکھ رہی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اہل حکم نئے صوبے بنانے کو اختیارات کے ارتکاز اور فنڈز کے نیچے تک پہنچنے کے لیے اکثیر اعظم یعنی فائدہ مند سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے مخالف نئے صوبوں کی تشکیل کو ملک توڑنے کی پہلی آئینی سیڑھی قرار دیتے ہیں۔ نئے صوبے بنانے کی حامی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا واحد راستہ یہی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے خود اور ان کے وزیر اعلیٰ اس منصوبے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں سارا بجٹ وزیر اعلیٰ کی ذاتی ثوابدید پر ہوتا ہے، سارے اختیارات اسی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاندانی وراثتوں اور بڑے خاندانوں کی چاندی ہے، مالی وسائل بھی ان کے پاس ہیں، سیاست بھی ان کے گھر کی باندھی ہے، اختیارات بھی ان کے چلتے ہیں۔ مڈل کلاس لیڈرشپ تبھی آ سکتی ہے جب اقتدار کے 4 بڑے مرکز صوبے تقسیم ہوں اور ان کی جگہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر صوبے بنائے جائیں۔ اچھا، اب یہ ایک باقاعدہ ماحول بنانے کی کوشش ہے۔ حالانکہ ہوا کیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد مقبول ترین عوامی سیاستدان ہیں کہ ان کے برابر، ان کے پاسنگ مقبولیت بھی پاکستان کے اندر ماضی میں کوئی سیاستدان حاصل نہیں کر سکا۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب صرف اور صرف بنگلہ دیش کے اندر مقبول تھے،
बाकी पूरे मुल्क के अंदर नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब 2 सूबों सिंध और बलूचिस्तान से उन्हें मैंडेट मिला, मशरकी पाकिस्तान में वो बिल्कुल थे ही नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनके मुखालिफ कौम परस्तों की हुकूमतें बनी। उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे मुल्क के ऊपर हुकूमत करती रही आपके सामने है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है जिससे इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के खौफजदा हैं कि कहां वो ये दावा किया करते थे कि फौज जो है, जो ताकतवर फौज जो है, वो पाकिस्तान को जोड़ कर रख सकती है ताकत के बलबूते पर, अपने मखसूस इक़दामात के बलबूते पर। और माजी हमें यह बताता है कि जब किसी ने आइन और कानून की बात की, शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल आपके सामने है, और अब तो हामिद मीर साहब इंकशाफात भी कर चुके अपनी वीडियोस के अंदर। एक वीलॉग मैंने तकरीबन शायद कोई एक माह 10 दिन पहले की बात है, 16 दिसंबर को मैंने भी आपके सामने रखा था, जिस मैंने तारीखी हकाइक बताए थे कि फील्ड मार्शल अयूब खान साहब तारीखी हकाइक के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंच चुके थे। उनके करीबी लोग किताबों के अंदर यह दावा कर रहे हैं कि असल में तो पाकिस्तान तोड़ने का जो मंसूबा है, भारत की एंट्री तो उसके अंदर उसमें बाद में हुई, यह मंसूबा तो अयूब खान साहब का था। वो कैसे अपने करीबी लोगों को कहा करते थे, बताया करते थे कि अगर मशरकी पाकिस्तान हमारे पास रहा तो शायद गवर्नेबल नहीं होगा, हम उनके ऊपर शायद हुकूमत ना कर सके। हमसे मुराद क्या थी? फौज। यानी वो ये समझते थे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK पर तो फौज हुकूमत कर सकती है मखसूस माहौल की वजह से। लेकिन मशरकी पाकिस्तान जो ज्यादा वेल अवेयर था सियासी तौर पर, शेख मुजीबुर रहमान जैसे रहनुमाओं की वजह से, जो कभी कायद-ए-आज़म के बड़े करीब मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे और उनको अपने आइनी अवामी जमहूरी हकूक का पता था, और जब वो अपने हकूक के लिए उठ खड़े हुए, फौज को, ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को ये नजर आया कि उनके इक़्तिदार की कश्ती डोलने वाली है, तो फिर मुल्क ही तोड़ दिया गया। और हामिद मीर साहब भी कह चुके, किताबें हमें ये बताती हैं, हमने भी गुज़श्ता माह ये वीलॉग आपके सामने तारीखी हकाइक की रोशनी में रखा कि जनाब असल मंसूबा तो, हामिद मीर साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि असल मंसूबा तो ये फील्ड मार्शल साहब का जो है अयूब खान साहब का था, पाकिस्तान तोड़ना। भारत की तो बाद में एंट्री हुई। अब आपको हम इन हालात की तरफ लेकर आते हैं कि शेख मुजीब की तो शायद मकबूलियत ही वो नहीं थी मासवाए मशरकी पाकिस्तान के अंदर। यहां पर क्या मामला है? इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान की 7 इकाइयों में यकसा मकबूल। ताज़ा तरीन लेटेस्ट सर्वे 266 में से 222 नशस्तें कौमी असम्बली की। गुज़श्ता इलेक्शन में 266 में से 180 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने हासिल की, जो कम करके 90 कर दी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 7 इकाइयों में इमरान खान साहब मकबूल तरीन। बलोचिस्तान जैसे सूबे के अंदर जहां कभी किसी कौम परस्त जमात के मुकाबले में कोई कौमी यानी कौमी सतह का लीडर, जो नेशनलिस्ट सूबाई सतह के हैं वो तो आते रहे, कौमी सतह का कोई लीडर हमें नजर नहीं आया, चाहे भुट्टो हो, चाहे बेनज़ीर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। लेकिन इमरान खान साहब वाइस सियासतदान, 50% से भी जायद की मकबूलियत उनके पास रही 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले। और इस वक्त सूरत हाल मजीद आगे बढ़ चुकी। गली गली, महल्ले महल्ले, स्ट्रीट मूवमेंट बलूचिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। हम पहले भी कुछ फुटेजेस आपको दिखाते रहे, आगे चलकर भी दिखाएंगे। इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची, जी हां, कहा यह जा रहा है कि 22 में से 21 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और अल्ताफ हुसैन साहब की इतनी मकबूलियत कभी कराची के अंदर नहीं थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुहाजिर वोट दिया करते थे। इमरान खान साहब को तमाम कौमियतों ने वोट दिया। ये बात मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, ये बात मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं, ये बात इमरान खान के मुखालफीन कर रहे हैं, ये बात मुल्की इदारे कर रहे हैं, खुफिया एजेंसी, प्रीमियर एजेंसी बता रही है, आलमी इदारे ये बात कर रहे हैं कि ये है वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर अब 28वीं तरमीम का डोल डाला जा रहा है। जो मैंने तहरीर आपके सामने रखी और बताया जा रहा है, अगर कोई अच्छा काम किसी बुरी नीयत से किया जाए ना तो वो भी बुरा हो जाता है। और इसके अंदर नीयत क्या है? इसके अंदर नीयत ये है, फाटा को दोबारा से निकाला जाए, KP के अंदर से सूबों को तकसीम किया जाए, यहाँ पर नए स्टेक होल्डर्स पैदा किए जाएं, ताकि इमरान खान साहब के मुकाबले में नई लॉन्चिंग्स हों। छोटे छोटे ऐसे पोर्शन या सूबे बना के सेनेट के अंदर उनको पोर्शनाइज किया जाए, वहाँ से ब्लैकमेलिंग की जाए कौमी असम्बली के ऊपर। फाटा का अलहदा से गवर्नर आ जाए, वज़ीर-ए-आला आ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब खुश हो जाएं, PTM वाले खुश हो जाएं, सराइकी सूबा बन जाए, वहाँ से कौम परस्तों को वारा जाए दीगर जगह। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर मैं तारीखी हक़ाइक़ की तरफ आता हूँ। कहा यह जा रहा है कि डिविजनल हेडक्वार्टर सूबे बनाए जाएँ, डिविजनल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी हो, DIG वहाँ के IG बन जाए, मुंतखब नुमाइंदे बतौर वज़ीर-ए-आला उनका सरबराह हो,
ऐसे नई क़यादत उभरेगी, लीडरशिप को तजर्बे का मौका मिलेगा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली होगी और यूं तारीख में पहली बार मुल्क भर में यकसा तरक्की हो सकेगी। बज़ाहिर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन है क्या? तख्ते लाहौर या तख्ते पेशावर और तख्ते कराची के अलावा छोटे शहरों में भी तरक्की के सम्राट पहुंचेंगे, रियासत और सूबे का कंट्रोल मुयस्सर हो जाएगा और सियासत में कौमी सतह पर भेड़ चाल का खात्मा होगा। मकामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो ज्यादा होगी, सियासतबाजी में वक्त ज़ाया करने से तवज्जो हटेगी। नून में कुछ लोग इस आइडिया के हामी हैं, जबकि बाकी मुतज़ब्ज़िब हैं कि पंजाब तकसीम हो गया तो नून की सियासी कुव्वत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम की हामी है, मगर दीगर सूबों की तकसीम के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी को समझाया गया है कि नए सूबे लसानी और मजहबी शनाख्त पर नहीं, इंतजामी बुनियाद पर तकसीम होंगे और पीपल्स पार्टी को इजाफी तौर पर पंजाब और 2 सूबों की वज़ारत आला भी मिल सकती है। आखिरी खबरें आने तक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। यानी इन मौसूफ सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं, कितने मखसूस अंदाज में पंजाब को नून लीग के खाते में डाल रहे हैं, जहां से नून लीग 15 नशिस्तें 141 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें इन्होंने हासिल की और एक नशिस्त इन्होंने 16 नशिस्तें और एक नशिस्त के मुतल्लिक कहा जाता है कि हज़ारा के अंदर यानी 17 नशिस्तें इन इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून हासिल कर रही है। पंजाब में 16 और ये उनके खाते में डाल रहे हैं कि उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी कमाल ढटाई के साथ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीच में से फारिग कर दिया मुकम्मल तौर पर और कह रहे हैं कि नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असल में मंसूबा ये है कि पंजाब को जब तकसीम किया जाए तो उसके बदले में क्या हो, कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर जो है वो सादा अक्सरियत की जानिब भी ना बढ़ सके और फिर क्या हो, वही चूं चूं का मुरब्बा हो, PDM 1 हो, PDM 2 हो, ताकि इक़्तिदार अपनी असल जगह पर रहे। किस जगह पर? जी हाँ, पिंडी में रहे इक़्तिदार रहे, यहाँ पर सियासी जमातें लड़ती रहें, महदूद कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मौजूदा इन हालात के अंदर अगर ये सब कुछ किए बगैर इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो इमरान खान साहब 222 नशिस्तें लेकर आ जाएंगे। उसके बाद फिर रवायती सियासी दुकानें, रवायती सियासी माफिया, अस्करी सियासी माफिया, हमेशा के लिए दुकानें बंद हो सकती हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि नए सूबे बनाने के मुखालिफ इस तजवीज़ को मुल्क के लिए ज़हर कातिल समझते हैं। अब दूसरा एंगल सुनिए, इनके ख्याल में वो ये कह रहे हैं कि साफ नीयत और अच्छे इरादे रखने के बावजूद इसके नताइज मुल्क को तोड़ने और हिस्से बखरे करने पर मुंतज होंगे। और फिर उन्होंने सोवियत यूनियन की भी मिसाल दी कि कैसे वो टूटा और फिर कहा कि नए सूबों के मुखालिफ इख्तियारात और फंड्स की निचली सतह पर मुंतकली के आइडिया से इत्तफाक करते हुए नए सूबे बनाए बगैर इख्तियारात को ज़िली सतह पर मुंतकिल करने की दलील देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में इनफरादी हैसियत बाकी रियासतों से मुख्तलिफ है। बाकी जगह रियासतों ने, मुल्कों ने सूबे बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान में मुल्क को सूबों ने मिलकर बनाया है और खुदा की तरफ से यह ऐसी तकसीम है कि फेडरेशन में इसका तवाज़ुन कायम है। और अगर कराची डिवीजन को सूबा बना दिया जाता है तो कल कलां को अल्ताफ हुसैन के हामी जिनापुर की सिटी स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, उनके मतवाजी कोई कुव्वत नहीं होगी। वो ये भी कहते हैं कि सियासत में हार जीत होती रहती है। दही सिंध में अगर पीपल्स पार्टी हार गई तो फिर वहां पर सिंधु देश बनाना मुश्किल ना होगा कौम प्रस्तों के लिए और वो करारदाद पास करके अपने मुल्क को आज़ाद करा सकते हैं। बलोचिस्तान की बलोच बेल्ट के लिए भी यही दलील दी जा रही है कि वहां पहले ही अमनो अमान खराब है, नया सूबा मिल गया तो आज़ाद बलोचिस्तान की राह हमवार होगी। और पंजाब की तकसीम पर भी बिलखसूस सूबे के बाएं बाजू और पंजाबी शौनिज़म के हामियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो सिंध और पंजाब की तकसीम को तारीख और सकाफत का कत्ल समझते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि ये जनाब इससे क्या होगा, एक नया पवाड़ा होगा और पीपल्स पार्टी को तो तैयार किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून भी आधी आधी तैयार है। तरक्की के नाम पर बाजार ये सब कुछ किया गया, लेकिन असल चीज़ उन्होंने भी नहीं बताई। ख़त्म वो इस तहरीर को यहाँ पर कर रहे हैं कि सब तैयार रहें, नए सूबों वाला मामला मंजर आम पर आने वाला है और 75 साल बाद इंतज़ामी तकसीम में रद्दो बदल पर गुफ्तगू तो बहुत कुछ हो चुकी, इसकी हतमी शक्ल क्या होगी आने वाले दिनों में मालूम होगा। तो जनाब ये इस किस्म के दुर्फुंतनियाँ छोड़ना शुरू कर दी गई हैं, टेस्टर मार्केट में डालना शुरू कर दिए गए हैं कि 18 साल से वोटर की उम्र बढ़ाकर 25 साल मनीफ फारूक जैसे लोग, सुहेल वड़ाइच जैसे लोग सूबों के लिए अवाम को तैयार कर रहे हैं। पहले भी इस किस्म की खबर आ गई है। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की 7 इकाइयों में यकसा तौर पर मकबूल हैं,
کیسے ان کا راستہ روکا جائے۔ نئے صوبے بنانے کے ہم بھی حامی ہیں، لیکن اس کا طریقہ واردات اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پارٹی کو سائیڈ پر لگانے کے لیے یہ سارے کام کریں اور تحریریں ایسی لکھوائیں جس میں پوری تحریر میں پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں، آپ نون لیگ کو پنجاب ان کے حوالے کر رہے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی تحفظات دکھا رہے ہیں۔ او بھائی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، تمام تر، وہ چاہے سندھ کے اندر ہو وہاں بھی سب سے بڑی ہے، پنجاب کے اندر بھی سب سے بڑی ہے، کے پی کے اندر سب سے بڑی ہے، بلوچستان کے اندر سب سے بڑی ہے، کشمیر گلگت بلتستان کے اندر سب سے بڑی ہے، اسلام آباد کے اندر سب سے بڑی ہے۔ تبھی تو یہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر لیں، آپ این آر او دے دیں، بصورت دیگر یہ 28ویں ترمیم کر کے ملک توڑنے کی بنیاد رکھ دی جائے گی، یعنی کہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اور پھر ماضی میں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک مقبول ترین سیاستدان کا راستہ روکنے کے لیے ملک کو توڑ کر رکھ دیا گیا۔ کیا خدا نخواستہ حالات میرے منہ میں خاک پھر اسی جانب جا رہے ہیں؟ حامد میر صاحب تو کچھ اسی قسم کے انکشافات کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔